Good morning students. Today I am going to discuss about sentences, phrases and clauses. हम सब ने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं. सेंटेंस ऐसे वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं. A sentence must have at least one subject and one predicate part. एक सेंटेंस जो प्रॉपर सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और आधा पार्ट सेंटेंस का उसमें प्रेडिकेट पार्ट होता है. There may also be more than one, but here you are going to learn about phrases and clauses which are part of a sentence. यहाँ पे हम सेंटेंस के अलावा भी phrases और clauses के बारे में पढ़ेंगे. phrases क्या है? phrases जो है, a phrase is a group of words that make sense but not complete. It has no subject and no predicate. यहाँ पे जो phrase होता है उस sentence में sensible sentences होते हैं but ना उसमें predicate part होता है ना उसमें subject part होता है. For example, here we can see the example. I have a bracelet of gold. Second one is Tina has a ring which is made of silver. The above group of words in sentence 1 of gold has a meaning. यहाँ पर जो पहला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंटेंस का, उसमें ऑफ गोल्ड की मीनिंग है और मेक सेंस एंड इट्स अ सेंसिबल सेंटेंस बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. पर इससे पूरा सेंस नहीं निकल रहा है. It is not a sentence for it has no subjects. It is not a proper sentence for it has no subject and no predicate. Such a group of words is called a phrase. This we can say a phrase is a group of words that make sense but not complete. It has no subject and no predicate. यहाँ पे फिर हम आएंगे clauses पे. The group of words in the above sentence which is made of silver is not a phrase. यहाँ पे जो second sentence है which is made of silver, यहाँ पे Tina has a ring which is made of silver is not a phrase. It has a subject which and predicate. Clause हम किसे कहते हैं? Clause जो है it is a group of words that forms a part of a larger sentence and has a subject and predicate of its own. यहाँ पे जो clause है वो ऐसे group of words होते हैं जो कि larger sentence को बनाते हैं और उसमें subject भी होता है और predicate होता है. इसमें आज हम देखेंगे, देखिए difference क्या है a sentence, a phrase and a clause. यहाँ पे sentence में पहले देखिए it is a group of words. यहाँ पे phrase क्या है? It is also a group of words. Then clause क्या है? It is also a group of words. Now sentence has a subject and predicate. Sentence में subject भी होता है और predicate भी होता है. पर जब phrase की बात करें तो it is no finite verb is there, may have a subject. और यहाँ पे clause में has a subject and predicate. यहाँ पे subject और predicate important है. यहाँ पर जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस में इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस और फ्रेज में हैज़ नो डेफिनेट मीनिंग. यहाँ पर सेंसिबल सेंटेंसेस होते तो हैं पर उसकी डेफिनेट मीनिंग नहीं होती है. हैज़ अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन. यहाँ पे क्लॉजेस की अपनी अलग मीनिंग होती है. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. यहाँ पर हमें पता है phrases and clauses generally do the function of noun, adjectives or adverbs. Hence, they are named as noun clause, noun phrase, adjective clause, adjective phrase, adverb clause and adverb phrase. Now, आपको पता होना चाहिए noun phrase और noun clauses क्या होते हैं. यहाँ पे a noun clause is a group of words which contains a subject and a predicate of its own and
डज द वर्क ऑफ अ नाउन। यहाँ पे नाउन क्लॉज जो है ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, और इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, वो नाउन का काम जो है वो पूरा करता है। नाउन फ्रेजेस क्या है? यहाँ पर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टू विन द मैच, डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, इट इज देयरफॉर अ फ्रेज, दिस फ्रेज डज द वर्क ऑफ अ नाउन। ये फ्रेज जो है नाउन का काम कर रहे हैं। सिंस इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सपेक्टेड, हेंस इट इज सेड टू बी द नाउन फ्रेज, सो इसलिए इसको नाउन फ्रेज कहा जाता है। The second group of words, that they would win the match, contains a subject and a predicate. यहाँ पर subject भी है और predicate भी है। Would win the match, it is therefore a clause. So इसलिए यहाँ पर larger sentence है, so इसलिए ये clause है। This clause is the object of the verb expected, and so does the work of a noun. Hence it is said noun clause. अब है एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज जो है ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उनके खुद के होते हैं, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव काम करता है वही काम क्लॉजेस भी करते हैं। एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्ब क्लॉजेस, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉजेस, उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्टेंसेस दिए हुए हैं। आई लाइक द फ्लावर्स विथ स्वीट ओडर एंड प्लीजिंग शेड्स, विच फ्लावर? देन बी वन, आई लाइक द फ्लावर्स विच हैव स्वीट ओडर एंड प्लीजिंग शेड्स, विच फ्लावर्स? The first group of words with sweet odor and pleasing shades describe what sort of flower. यहाँ पे जो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वहाँ पर ये क्या जता रहा है, ये क्या समझाना चाह रहा है? It's a flower, it's a flower with sweet odor and pleasing shades. Describe what sort of flower. वो किस टाइप का फ्लावर है? I like, that is, it qualifies the noun flowers and does the work of an एडजेक्टिव। जो काम एडजेक्टिव करता है वो काम यहाँ पर ये कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज। सो द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव स्वीट ओडर एंड प्लीजिंग शेड्स ऑल्सो डिस्क्राइब व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्लावर्स आई लाइक, एंड सो डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, बट since it contains subject and a predicate of its own, hence it is also said to be the adjective clause. An adjective clause is a group of words which consists of subject and predicate of its own and does the work of an adjective. यहाँ पे कुछ sentences हैं। He returned at sunset. He returned when the sun set. Returned when, यहाँ पे question करिए आप कि कब return हुआ। Adjective clause में क्या है? ऐसे मैं बार बार बता रही हूँ कि ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। फ्रेजेस में आपका जो उसकी डेफिनेट मीनिंग नहीं होगी पर सेंसिबल सेंटेंसेस होते हैं। और क्लॉजेस में हैज़ द मीनिंग ऑफ इट्स ओन, हैज़ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन।